Okay, good morning. Um, it's a very special moment again because we are dealing with the last two chapters of your syllabus. Um, First of all, apologies for delaying the chapter, but technically I did not do it on purpose. I was absolutely tied up with my own work, my own struggles of life. So please don't mind on that particular point. And it's just basic level of humility and basic level of etiquettes that I am apologizing for the unnecessary delay which we had to face with respect to the chapter. Anyways, so cutting the crap, let's get back to serious business. So we have come across a very beautiful chapter, that is human reproduction. We have successfully finished up एकता कपूर की सीरियल, है ना. तो अब हम जो चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज अनदर मॉड्यूल, अनदर सेक्शन कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Now this chapter, reproductive health, is being divided under four modules. Okay, so we will be talking about four different modules. Primarily we will talk about population demographics. We will talk about population demographics. Now when I say population demographics, I am talking about demography is the study of population. ठीक है. सो आफ्टर स्टडिंग द पॉपुलेशन, जो भी हमने चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है, सो वी विल बी डीलिंग विद दैट इन द फर्स्ट मॉड्यूल. एंड पोस्ट दैट, अब डेफिनेटली जब मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, इंडिया है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की भी बात होगी. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है बाय बर्थ कंट्रोल मेजर्स. So the next module talks about birth control measures. कि भैया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबके घर में क्रिकेट प्लेयर्स जमा हो रहे हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा कम करो भाई, है ना. हैव अ स्मॉल न्यूक्लियर न्यूटर फैमिली, नॉट न्यूटर फैमिली, माय मिस्टेक, न्यूक्लियर फैमिली, है ना. सो द सेकेंड मॉड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स. The third module is basically talking about sexually transmitted diseases. It talks about diseases with respect to improper medical health with respect to reproductive life. Unsafe reproductive life से क्या क्या diseases होती है, वो सब हम लोग बात करेंगे in the third module. And the fourth module basically talks about IVF, that is in vitro fertilization. ठीक है. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जिसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं. सो साइंस हैज रीच्ड टू इट्स पिनिकल ऑफ सक्सेस वेयर वी आर नाउ एबल टू obtain, or we are now able to develop a child without the involvement of the parents. ठीक है. अब आपने एग्जाम्पल्स तो देखा ही होगा, करण जौहर है, तुषार कपूर है, दे आर ऑल सिंगल पेरेंट्स, राइट. दे हैव देयर चिल्ड्रन, दे हैव चोजन सरोगेसी टू ऑब्टेन देयर ओन चिल्ड्रन, टू ऑब्टेन देयर ओन जीन्स, राइट. सो एक नेचर का जो ये उसूल है, नेचर का जो ये रूल है कि एवरीवन वांट्स टू पास their own genes to the next coming generation. So we will talk about the methods of IVF in the last module. Okay, so in this particular class we will primarily talk about population demographics. So I told you what is demography. Demography is the study of population. अब जब मैं पॉपुलेशन को बहुत डिटेल में स्टडी करता हूँ तो मैं तो उसमें आई कैन फाइंड आउट द लिटरेसी रेट, आई कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल, आई कैन फाइंड आउट the health conditions, I can find out the birth rate, I can find out the death rate. So all that is being dealt in the topic called as population demographics. Is that right? So
इन केस ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स अगर आप पहले पेज में देखते हो एनसीईआरटी के, तो कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड डेटा है, ठीक है, और इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, बट बिकॉज वो एनसीईआरटी में है बेटा, तो हमको बहुत ध्यान से वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. सो everything which has been written in your textbook is been properly extracted and given to you in the notes, ठीक है. So for this chapter also, as usual, I say that please follow your notes and your NCERT. That is it. Do not go ahead and beat around the bush. Do not go ahead and read a lot of reference books for this small chapter, ठीक है. क्वेश्चन का वेटेज अगर चैप्टर का है, सो चैप्टर होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 2 क्वेश्चंस. समझे बच्चा, ठीक है. So let's go ahead and talk about what is reproductive health. We'll talk about definition of reproductive health, and then we will move on to the definition of reproductive health. अब कॉमन सेंस है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज नथिंग बट मेंटेनेंस ऑफ अ हेल्दी well-being, a total well-being in terms of all the aspects of reproduction. अब जब मैं रिप्रोडक्शन बोलता हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं कोइटस, ठीक है. उसके बाद जेस्टेशन इज अगेन जो हमने ये चैप्टर में पढ़ा, जेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट इज एसोसिएटेड, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट है. अगर उस स्टेज में, उस डेलिकेट या वल्नरेबल स्टेज में उसको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ केयर नहीं मिला, सो इट विल एब्सोल्युटली हैम्पर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, right? So definition of reproductive health is nothing but it totally deals with, it is nothing but the total well-being in all aspects of reproduction, in all aspects of reproduction. Okay. Now, I told you some fact-based questions which we need to follow, and that is some fact-based questions which we have to deal with is that India initiated a family planning program in 1951. 1951 को क्या हुआ था बेटा? इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद, बिकॉज सिर पैर नहीं होता था, लोगों को यही नहीं होता था कि अरे हमको बच्चों की आगे चलकर परवरिश करनी है, सो जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, है ना. सो एब्सोल्युटली इट वाज हेवायर, राइट. सो 1951 में इंडिया इनिशिएटेड अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बिकॉज 1950 में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज सोअरिंग हाई. This was all because of illegal immigrants coming from Pakistan and illegal immigrants coming from Bangladesh, because Bangladesh की तब की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है. ऑल दिस इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दिस इज़, अगर रियल टाइम क्लासेस होते तो मैं आपको ये सब स्टोरी बताता, बट वीडियो है, डॉक्यूमेंटेड है, तो आई शुड नॉट बी गेटिंग दोज कमेंट्स कि सेइंग सर तो अननेसेसरी चीज़ें बता रहे है ना. बट कीपिंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट इन माइंड, दैट आई होप वी नो पोस्ट पार्टीशन बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान. तो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो आज हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तो बांग्लादेश वॉज इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड, है ना. इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया था, बट बांग्लादेश वॉज अ वेरी पुअर कंट्री दोज टाइम्स. So a lot of illegal immigrants came and they settled down in India, और इंडिया तो दोनों हाथों से शरणागत लोगों की स्वागत करता है, राइट. सो इंडिया ने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, राइट. इंडिया ने होल हार्टेडली विद ऑल दैट सेल्फलेसनेस उसने एक्सेप्ट किया लोगों को, एंड दैट वाज वन रीज़न वाई द पॉपुलेशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. Is that right? So there were certain strategies which were planned in the year 1951. उसमें से एक strategy ये भी थी, बहुत अच्छी strategy थी, if you remember this, संजय गांधी के टाइम पे
everyone who is doing voluntary sterilization मतलब नसबंदी जो करा रहे हैं, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो करा रहे हैं, डेफिनेटली मैरिड एंड हैविंग आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती थी. बट हम तो इंडियंस हैं, हमको पता है कि कैसे फ़ायदा उठाना है ना. तो ऐसे बहुत सारे, इस चीज़ का भी बहुत बवाला कर दिया. मतलब वो ना कि मोदी जी ने कहा कि अपने बालकनी में खड़े रहकर तालियां बजाओ और थाली बजाओ और जो भी घंटी बजाओ, जो बजाना है बजाओ. बट देयर वेयर पीपल इन इंडिया जिनको ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, वो आ गए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म पे, वो आ गए रोड पे और रोड पे थालियां बजाने लगे, रोड पे गरबा खेलने लगे. दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़. दिस I don't want to use this word, but this is absolutely stupid mentality. Is that right? हम हर चीज़ को एक्सट्रीम में लेके जाते हैं. So this beautiful strategy which was being developed, वो भी पानी में चली गई बिकॉज हम उससे भी पैसा बनाने लग गए. राइट. सो एनीवेज, सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दे इंट्रोड्यूस, आई टोल्ड यू देयर वर सेवरल मेजर्स. हम दो हमारे दो, ये जो नारे थे ये भी फैमिली प्लानिंग का ही एक नारा है. ठीक है. अब चाइना में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है. You will be jailed if you have more than one child. You are absolutely not allowed to have more than one child. Right? तो मैंने आपको बताया था कि चाइना कुछ और स्ट्रैटेजी, मतलब ये है बेटा, ह्यूमैनिटी इज एब्सोल्युटली डाइंग, इट इज ड्राउनिंग इनटू द लावा ऑफ हेल. एब्सोल्युटली. तो ये भी आपको मैंने बताया था कि चाइना में अब सिंस देर इज बैन फॉर मोर देन वन चाइल्ड प्रिसाइजली, तो लोग फीटसेस को बेचने लग गए, फीटसेस को खाने लग गए. सो दिस इज वेरी इनह्यूमन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आई रियली वंडर कि I don't want to say this on the video, but I am really scared of having children. I am really scared of having kids because I don't want to see them in despair. I don't want to see them unhappy. I don't want to see them struggling with a good quality, bad quality of air, struggling with so much of congestion, so much of problems in their life. अभी ही हम डील कर रहे हैं, कोरोना से डील कर रहे हैं, हम ये सब लॉकडाउन से डील कर रहे हैं. आई डोंट नो इन नेक्स्ट 10 years or 20 years what would be the exact scenario, right? Anyways, so let's stop beating around the bush again. ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, 1951 ये डेट याद रखनी है. एंड अंडर दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दे इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज RCH. अब RCH का फुल फॉर्म आपको याद रखना है. RCH program is reproductive. RCH program is reproductive and child health care. Reproductive and child health care program. ठीक है. सो RCH प्रोग्राम की स्ट्रैटेजीज में क्या क्या हम लोग यूज करते थे. पहली चीज, आपने विद्या बालन की ऐड देखी होगी, जहां सोच वहां शौचालय ना. ये बहुत फेमस लाइन हो गया था, जिसके ऊपर एक पूरी पिक्चर आ गई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा. करेक्ट. सो now what was the intention of making such slogans? What was the intention of building up toilets in your own houses? Because ये जो females होती थी, ये pregnant lady होती थी, उनको खुले में शौच कराना, खुले में sanitation करवाना, that was turning out to be very difficult for them, and it was also very unhealthy. राइट. ये फीमेल अगर प्रेग्नेंट लेडीज को कोई टाइप की इन्फेक्शन हो गई, डायरेक्टली दैट इन्फेक्शन विल अफेक्ट द चाइल्ड. करेक्ट. सो इट इज़ वेरी 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 मच एविडेंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप टॉयलेट्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. ठीक है. फिर आमिर खान एक ऐड करता था यही रिगार्डिंग कि पहले माँ का पहला दूध, ये वाला स्लोगन था शायद कुछ, है ना. सो इट वॉज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम, बिकॉज ये जो कोलेस्ट्रम है दैट इज अल्टीमेटली डीलिंग विद चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना. अगर मदर्स फर्स्ट मिल्क दैट इज कोलेस्ट्रम बच्चे को नहीं मिला, डेफिनेटली द चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम
will be deteriorated. The child will be vulnerable or at a risk of getting infections, right? So ultimately it will grossly affect the child health care, करेक्ट. सो प्रेग्नेंट लेडी को मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जेस्टेशन के टाइम पे उनको बहुत ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. सो दैट RCH प्रोग्राम के बारे में NCERT कुछ बोलता है बेटा, ठीक है, वो आपको याद रखना है. RCH प्रोग्राम, ओके, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ओके, सो फॉलोइंग दैट we have a few more points to remember that एक important population explosion के बारे में हमको कुछ points याद रखनी है कि 1900 में according to the census, census का मतलब है population, मतलब जनसंख्या की गणना करना. वाह 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 वाह, इतनी ज़्यादा हिंदी तो मैंने कभी बोली नहीं थी. तो जनसंख्या की गणना में anyways let's cut the crap. ड्यूरिंग द सेंसस 1900 की जो सेंसस थी तब द वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में लोग ने देखा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन. वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था बेटा? वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन. और पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है, राइट? तो 1900 में 2 बिलियन थी एंड अराउंड 100 years के बाद अराउंड 2000, अराउंड आफ्टर अ सेंचुरी द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकेम 6 बिलियन. नाउ कैन यू इमेजिन 100 साल में पॉपुलेशन 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गया. दैट इज अ मैसिव नंबर डूड, right? So this is what two important things you need to remember. 1900 में population was 2 billion and 2000 में the population rocketed to 6 billion. ये तो हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है. अब वर्ल्ड पॉपुलेशन गया तेल लगाने. वर्ल्ड पॉपुलेशन के हमको कुछ करना नहीं. हाँ, ये चीज़ें NCERT में दी है तो इसको सिर्फ डेटाबेस से याद रख लो. बट वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडिया. हमको क्या करना है कि साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन बढ़ रही है या चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही है. डेफिनेटली वी कैन नॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल, बट टेक्निकली अपना फोकस तो इंडिया पे ही है ना. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है. सो इंडिया में जो पॉपुलेशन थी इन अराउंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ओके, इंडिया की बात करते हो विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया की पॉपुलेशन थी समवेयर डाउन द लाइन 350 मिलियन. सो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन कितना था बेटा? इंडिया का पॉपुलेशन वाज 350 मिलियन ओनली. 350 मिलियन ओनली, कुछ भी नहीं है ना. सो और इंडिया की इंडिपेंडेंस कब थी? 1947, ठीक है. अब 1947 को अराउंड 350 बिलियन था. और साल 2000 में, मतलब व्हेन द सेंसस वाज डन इन May 2000, the population of India rocketed to 1 billion. अब आप समझ रहे हो कि विदिन अराउंड ऑलमोस्ट 50 years में पॉपुलेशन 350 से 1 बिलियन हो गया. नाउ आई होप यू नो व्हाट इज 1 बिलियन. 1 बिलियन इज 1000 millions, राइट? 350 से बढ़कर अपने आप अप्रॉक्सीमेटली समवेयर डाउन द लाइन 650 मिलियन और बढ़ गई. अब 650 मिलियन, 50 साल में 650 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई. इसका मतलब हमने बहुत 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 काम किए हैं. तो बोलने का मतलब ये है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइटन अप द मूड, एंड इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि 50 साल में क्या हो गया है भारतीय लोगों को. 50 साल में एवरीवन वाज सो मैड दैट कुछ काम धंधा था नहीं, तो काम धंधा करते गए और करते गए और देखो कितनी अच्छी पॉपुलेशन हमने बना दी. सो अराउंड 2000 में
मतलब around May 2000 the population rocketed to 1 billion. So इससे हमको ये पता चलता है that वर्ल्ड में every sixth individual is an Indian. Sixth individual is Indian. ये याद रख लो बेटा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. सिक्स्थ बोला था, सेवेंथ बोला था, ये आपको याद रखना है बेटा. ठीक है, बिकॉज सेवन से रिलेटेड भी एक फैक्ट आएगा आपको नेक्स्ट इसमें हम दिखेंगे. तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. हर छठवां इंसान इंडियन है. राइट, दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड. हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि इंडियन लोगों की ताकत क्या है, इंडियन लोगों की स्टैमिना क्या है, इंडियन लोगों की अप्रोच क्या है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कंसर्न विच वी नीड टू बी अवेयर ऑफ. ओके, so this much data which is already given into your notebook, so please make sure that you remember this. ठीक है, I told you very unlikely that you might get a question from this. Perfect. ठीक है, अब कुछ और मैंने आपको बताया कि 7 बच्चे 6 और 7 में कंफ्यूज हो जाएंगे. वो 7 नंबर कंटेनिंग डेटा क्या है वो हम लोग याद करते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, according to 2001 census, the growth rate of India was somewhere down the line. The population growth rate, according to 2001 census, the population का जो growth rate था, population growth rate was 1.7%. So please remember, ये वन यहाँ पे आया अपना 7 वाला डेटा. ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा. सो एवरी सिक्स्थ इंडिविजुअल एंड दिस इज 1.7%. इज दैट वेरी क्लियर? सो 1.7% इंडिविजुअल. ओके, सॉरी माय मिस्टेक. ये ग्रोथ रेट था. अब 1.7 का ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? अगर मैं 1000, व्हेन वी कंसिडर द पॉपुलेशन वी ऑलवेज टेक अप पैरामीटर ऑफ 1000. ठीक है, तो 1000 में से 17 लोग इंडियन हैं. समझ रहे हो? पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन अगर मैं काउंट करूँ तो अगर 1000 में डिवाइड करके रखूँ तो 1000 में से 17 लोग इंडियन हैं. मतलब दैट इज अ ह्यूज. भारत माता की जय. राइट, सो that was around 2001 census, and the population doubled in the next 30 मतलब बोलने का मतलब ये है a rate. This was the ये है कि this is one important feature which we need to remember. ठीक है, and apart from that the population का जो rate है ये double हुआ है in the next 33 years. Is that right? So बोलने का मतलब क्या है कि our population at rate, this was the growth rate, and because of this growth rate, ये growth rate से हमारा population 33 years में ही डबल कर गया. 33 years में पूरा कंट्री का पॉपुलेशन डबल हो रहा है. इसका मतलब कुंडी मत खड़काओ राजा. तो बोलने का मतलब ही है बेटा कि व्हाट इज हैपनिंग. हर घर में एक कहानी है और हर घर में ये चीज हो रहा है, और इट्स मैटर ऑफ कंसर्न डूड. इट इज एब्सोल्यूट मैटर ऑफ कंसर्न. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा देयर विल बी स्ट्रगल फॉर द रिसोर्सेज. हमारे डिमांड्स बढ़ जाएंगे, और डिमांड बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगा बट सप्लाई कम है ना. तो हर एक वो चीज़ के लिए कंपटीशन होगा. आपने ये स्ट्रगल देखी थी व्हेन वी एक्सपीरियंस्ड दैट डीमोनेटाइजेशन. नोटबंदी जब भी हुई थी तब डिमांड इतना ज़्यादा था लोगों का, लोगों के पास पैसे, ब्लैक मनी वो सब था. तो सप्लाई ऑफ दिस न्यू नोट जो था वो सप्लाई इतना कम था कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी एटीएम के बाहर. एंड ये हमेशा इंडिया में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो जो भी चीज़ें हमको अवेलेबल है वो डबल रेट में मिलेगी. इन्फ्लेशन, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं. Inflation, extreme poverty, these are the difficult conditions which we will experience in terms of population. ट्रेन में गर्दी, मेट्रो में गर्दी, बसेस में गर्दी. You really can't afford
यू रियली कांट रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर लोगों को अपनी खुद की गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी. खुद की गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम. यू रिमेंबर दिस, एक फैक्ट आया था कि चाइना में एक ट्रैफिक जैम लगी थी जो 6 दिन तक थी. इट वॉज अ हेल. मतलब लिटरली दे वेर helicopters which were used to escort the vehicles from one place to another. मतलब आप समझ रहे हो कि चाइना is already dealing with this issue, राइट. और अगर हम अपने नेबर कंट्री से देखकर ये सब चीज़ें, इफ़ वी डोंट टेक अप लेसन्स फ्रॉम देम, देन एब्सोल्युटली वी आर फूलिश. और ये चीज़ के लिए तो हम प्रख्यात है पूरे वर्ल्ड में, राइट. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो and to gather information with respect to or learn from the experiences of the neighboring countries within. मतलब चाइना तो अपनी बहुत stringent rules ले रहा है, और ऐसे बोलते हैं कि चाइना जैसा कंट्री जितना स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और फॉलो करता है, शायद इंडिया वो कभी नहीं फॉलो कर पाए, और इंडिया की पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज होते जाए. ठीक है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, नो, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हैविंग किड्स. आई डोंट वांट माय किड टू सफर. आई डोंट वांट माय किड टू स्ट्रगल फॉर एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी सिंगल गैलन ऑफ एयर. इज दैट राइट? सो it's going to be a difficult future for them. So that is why this chapter has been implemented in your syllabus, so that you, as at a very early age, propagate this information and know the value of the value of awareness with respect to population explosion. ठीक है बच्चा? ओके. तो ये हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, इतना आपको याद रखनी है. अब कुछ और डेटा है जो हम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट देयर इज, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अ फ्यू डेफिनेशंस. ओके. अब वो डेफिनेशन क्या है वो हम लोग बात करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू वर्ड्स. ठीक है. सो सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स. Important concepts of population demographics. You are expected to know the definition because ये definition exam में पूछ सकते हैं, and they are pretty simple. बहुत ज़्यादा simple है, सिर्फ confusing है बस. तो confusion निकालने के लिए तो मैं हूँ flesh and blood में. ठीक है. तो चलो, फर्स्ट डेफिनेशन विल टॉक अबाउट, एंड दैट इज mortality rate. Now if you understand these definitions correctly, you will be able to solve the questions based on this. ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो इसके ऊपर आएंगे. अब mortality rate, नाम बता रहा है मॉर्टल का मतलब क्या है? मॉर्टल का हिंदी मतलब है नश्वर, समथिंग विच इज पेरिशेबल, समथिंग विच इज अबाउट टू डाई. ठीक है. सो मोर्टैलिटी रेट हियर इज टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ पीपल. हमने ये भी सुना होगा ना, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा करके एक बुक आई थी अमीश त्रिपाठी की, राइट. सो इमॉर्टल्स आर दोज हु डू नॉट एक्सपीरियंस डेथ. चिरंजीव जिसको हम बोलते हैं, राइट, जिसने एलिक्सर, दैट इज अमृत, पिया हुआ था. करेक्ट. सो बोलने का मतलब ऐसा है बेटा कि दैट मोर्टैलिटी रेट हियर डील्स विद द स्ट्रैटेजी नहीं द पैरामीटर ऑफ डेथ. ठीक है. सो हियर इट इज बेसिकली को रिलेटेड विद द डेथ रेट. मैंने आपको ये बताया भी था कि जब मैं पॉपुलेशन को कंसिडर करता हूँ, आई विल डेफिनेटली कंसिडर 1000 इंडिविजुअल्स. मेरा कंपैरिजन यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स के साथ नहीं है, मेरा कंपैरिजन यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल्स के साथ है. ठीक है. सो how do you calculate the mortality rate? So it is the number of individual deaths per 1000 individuals एक एरिया में. लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने पुणे का कोई एक गांव ले लिया है. ठीक है. हमने पुणे के गांव में पूरी पॉपुलेशन को काउंट कर ली. अब उस पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन को हमने 1000 में डिवाइड करके रख दिया.
ठीक है, अब रेट कैसे कैलकुलेट करूंगा? सो आई हर 1000 के ग्रुप में से कितने लोग मरे, दैट इज द मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सो हाउ डू यू डिफाइन दिस? मॉर्टल का मतलब आपको याद रखना है, मॉर्टल का मतलब है समथिंग हु विल डाई। ठीक है, सो मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ्स। व्हाट इज इट? इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ्स per 1000 people or 1000 individuals, per 1000 individuals in a given year. In a given year. तो जैसे देखो मोर्टेलिटी रेट अब जाकर कम हुआ है ना? अगर मैं अब मोर्टेलिटी रेट की बात करूँ, सो बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट मेडिकल फैसिलिटीज, द मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। एक टाइम था जब महामारी फैली थी, एक टाइम था जब प्लेग, अब जैसे कोरोना इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, इट्स अ ग्लोबल पैंडमिक, आई वुड कॉल इट एज इट्स अ वर्चुअल ग्लोबल पैंडमिक, राइट? बट एक ज़माना था जब इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग विद प्लेग, इंडिया या फिर लंदन वॉज स्ट्रगलिंग विद ट्यूबरकुलोसिस, तो तब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, करेक्ट? सो द डेथ रेट, द मोर्टेलिटी रेट वॉज इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्टेडली, इट वॉज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ता है, इट विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर दोज कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन ही कम है, जैसे न्यूजीलैंड है, तांजानिया है जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है, ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है। वहाँ पे अगर मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, so it will have a negative impact on the country's economy and the country's manpower. बट इंडिया जैसे कंट्री में मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ गई, अब कोरोना की केस में देखो मोर्टेलिटी रेट कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट इवन 1%। मतलब 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 1% लोग भी नहीं मरे हैं। Are we understanding it? So that is how your immunity works here, right? So in a massive population, like in a country having massively densely populated, जो भी आप बोलना चाहते हो, so in such countries mortality rate should increase to bring down the population, because exam में ऐसे questions आते हैं कि what are the factors of population explosion, राइट? सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होगा? जब मोर्टेलिटी रेट कम होगी बेटा, मतलब लोग कम मरेंगे। अगर लोग कम मरेंगे दैट मीन्स दे आर अकाउंटिंग टू द पॉपुलेशन। अगर वो पॉपुलेशन को अकाउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है दैट पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली इंक्रीजिंग। इज दैट वेरी क्लियर? सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट। विल राइट दोस features when we are talking about population explosion. For now just remember the definition. समझे क्या? ठीक है, अब दूसरा फैक्टर है जो एनसीईआरटी बोलता है, दैट इज IMR। IMR क्या है बेटा? I stands for infant mortality rate। कॉमन सेंस, मैं लिखता नहीं हूं इधर, ठीक है? कॉमन सेंस लगाओ। IMR का मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, चट्टे लेना, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो बच्चों को प्रॉपर केयर मिली है ना, इफ द प्रेग्नेंट लेडीज आर एब्सोल्युटली टेकन, उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, तो जो बच्चे होंगे वो हेल्दी रहेंगे एंड वो अच्छे से जिएंगे, राइट? सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? इफ देर इज इम्प्रॉपर, अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ऐसी है कि इन्फेंट जो पैदा हो रहे हैं वो मर रहे हैं, राइट? सो इंक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR है ना, अगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जल्दी मर जा रहे हैं, सो दे आर नॉट अकाउंटिंग टू द पॉपुलेशन, राइट? सो दूसरा एक फैक्टर है विच इज अकाउंटिंग फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चे कम मर रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम बीइंग वेरी हार्श ऑन माई टर्म्स। इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही होगा
So number of individual deaths, number of infant deaths per 1,000 individuals in a given year is infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कैसे किया जा सकता है? बाय मेंटेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बाय गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशनल गाइडेंस टू दी प्रेग्नेंट लेडी. ठीक है. अब तीसरा जो फैक्टर है जिसको मैं बोलूंगा MMR. अब MMR का मतलब क्या है? यहां पे M स्टैंड्स फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कॉमन सेंस. मैटरनल मतलब मदर से रिलेटेड है, राइट? सो जो मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा पिक्चर आई थी, है ना, तो उसमें हमने क्या देखा? दैट अक्षय कुमार एक रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है और वो अपनी वाइफ के लिए टॉयलेट बनाने की कोशिश करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें हमने देखी है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी. अगर उसको प्रॉपर हेल्थ नहीं, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो प्रेग्नेंट लेडी बीमार हो जाएंगी, और अगर बीमार हो जाएंगी तो शी विल ऑल्सो डाई. अगर मदर्स ही नहीं रहेंगी, सो द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड, राइट? सो यहाँ पे IMR बोलता है, IMR is the rate of the individual children who are dead. MMR is the rate of the individual mothers who are dying. अगर मदर्स ही नहीं बचे तो पॉपुलेशन तो कम समवेयर डाउन द लाइन बचेगा ही नहीं, राइट? सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज डिक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मतलब माएँ कम मर रही है, करेक्ट? अगर माएँ कम मर रही है तो बच्चे हेल्दी जिंदगी जिएंगे और बच्चे पॉपुलेशन को अकाउंट करेंगे. सो हियर डिक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज्ड infant mortality rate and decreased maternal mortality rate are the factors for population explosion. ठीक है, ये हो गया इतना. और चौथा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, नेटैलिटी रेट. मोर्टेलिटी रेट का दूसरा नाम क्या है बेटा? डेथ रेट. ठीक है. नेटैलिटी रेट इज नथिंग बट दी बर्थ रेट. बर्थ रेट मतलब बैलेंस नहीं है. यहाँ पे लोग कम मर रहे हैं बट लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो बैलेंस, है ना? आपके घर में से कचरा कम निकल रहा है और आपके घर में सामान ज़्यादा लोड हो रहा है ना? सो अल्टीमेटली एक ऐसा भी स्टेज आएगा जब आपको खुद को पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी. इज दैट राइट? सो बोलने का मतलब ये है दैट नेटैलिटी रेट इज नथिंग बट दी बर्थ रेट. सो अब मेरे को ये चीज बताओ, इन 4 फैक्टर्स में से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या रीजन होगा? मतलब नेटैलिटी रेट अगर बढ़ी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई मतलब माएँ कम मर रही है, करेक्ट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर डिक्रीज हुई मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कम मर रहे हैं, है ना? मेडिकल फैसिलिटीज उनको अच्छी मिल रही है. और मोर्टेलिटी रेट इज एनी विच वेज, अगर कम लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा बेटा. इज दैट वेरी क्लियर? सो दीज 4 फैक्टर्स विच यू नीड टू रिमेंबर, है ना? सब जगह पे डिक्रीज है, एक ही जगह पे इंक्रीज है, वो है बर्थ रेट. इज दैट वेरी क्लियर? अब इसको याद करना भी बहुत ईजी है. नेटैलिटी, नियोनेट, ये वर्ड से आया है नेटैलिटी, बर्थ. इज दैट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके. एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो यू माइट कम अक्रॉस और यू माइट फेस कंफ्यूजन इज द मॉर्बिडिटी. अब morbidity has nothing to do with these population number of individuals. Morbidity is the number of morbidity is technically the number of chances of, नंबर नहीं है यहाँ पे, chances of spread of disease. ठीक है. तो बोलने का मतलब ये है, morbidity का मतलब है chances of spread of disease. अब इसका क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इंडिया में. ठीक है. अगर मैं इंडिया में कोरोना के डेथ्स की केसेस की बात करूं, सो इंडिया में जो डेथ है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना दैट इज कंपैरेटिवली लेस. बट अगर आप इटली बात करते हो, अगर आप
लंदन की बात करते हो, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हो, ब्राज़ील की बात करते हो, देयर द डिजीज़ से मरने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। करेक्ट। क्यों ऐसा हुआ कि इंडिया में लोगों को आदत है ना गंदी गंदी कंडीशन में रहने की, हम इतने पास पास के घरों में रहते हैं, हम इतने क्या बोलते हैं उसको, पोल्यूटेड एयर में भी जिंदा रहते हैं। सो इंडिया में कंडीशंस आर एब्सोल्युटली, इंडिया के इंसान और इंडिया के गाय भैंस, ये दोनों जो है ना, दे आर एब्सोल्युटली डिजीज रेजिस्टेंट। इंडिया की गाय भैंस आर वेल नोन इन दी वर्ल्ड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। वेर एज हॉलैंड की अगर गाय की बात करोगे तो हॉलैंड की गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, बट इंडिया की गाय कोई भी कंडीशन में जिंदा रहती है, इंडिया की गाय कम बीमार पड़ती है, तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। करेक्ट। सो ऐसा ही कंडीशन ह्यूमंस के केस में भी है। सो द मॉर्बिडिटी इन टर्म्स ऑफ कोरोना इन इंडिया वॉज कंपेरेटिवली लेस। करेक्ट। और मॉर्बिडिटी इन केसेस ऑफ कोरोना इन विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, है ना, मतलब जो इटली है, ब्राज़ील है, ये कंट्रीज़ में दी मॉर्बिडिटी वॉज कंपेरेटिवली मोर। तो अगर मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है तो भी पॉपुलेशन कम होगा बेटा, क्योंकि मॉर्बिडिटी अगर ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी रेट अगर ज़्यादा है, डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस ये भी है कि लोग ज़्यादा मरेंगे। अगर लोग ज़्यादा मरेंगे तो डेफिनेटली पॉपुलेशन कम होगा। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। Now, this is what you have to remember with respect to the population demographics. इसके अलावा आपको मैंने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमने जब एम्स पढ़ाते थे हम, तब हमको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती थी, बिकॉज एम्स में एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आता था। ठीक है। सो बट ऐसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से याद रख लो बेटा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉपुलेशन की रैंकिंग की बात करूँ तो सबसे पहला जो कंट्री आता है ना, रैंकिंग की बात करूँ, रैंक एंड पॉपुलेशन की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अपना चाइना, दूसरे नंबर पे भारत माता की जय, तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स अभी कम कर रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसीज को कम कर रहा है, और चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। ओके, इट इज, और इंडिया, मतलब ये चीजें आप याद रख सकते हो बेटा। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? यूपी। हम यूपी बिहार के हैं, सो इंडिया में यूपी मोस्ट पॉपुलस है, एंड देयर एब्सोल्युटली, उनको गर्व है इस चीज़ की कि हमारे घर पे 8-8 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, पूरी क्रिकेट टीम है। तो एंड सिक्किम, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। यह हमने इंडिया के बारे में याद रखना है बेटा, लीस्ट पॉपुलेटेड, समझी क्यों? ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये तो हो गई स्टेट्स की बात। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो इंडिया में मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी क्या है? चलो रैपिड फायर खेलते हैं। इंडिया में मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी इज दिल्ली, और लीस्ट पॉपुलेटेड इज लक्षद्वीप। इवन अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, लक्षद्वीप तो हमने सुना भी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। इज इट वेरी क्लियर? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंस मतलब हम बोलते हैं ना कि हवा एक जगह पे डेंस होती है, और या फिर इफ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, ये सब डेंसिटी का मतलब क्या है? हियर पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, सो व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स living per
स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मतलब आप अगर ऐसी कंडीशन देखते हो, ओके, आप अगर ऐसी कंडीशन देखते हो कि सिटीज में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। छोटे मुंबई जैसे कंट्री, जो मुंबई जैसे सिटी में लोग बहुत पास पास रहते हैं, मतलब एक छोटी सी एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। बट वही आप कोई गांव साइड चले जाओ, एकदम इंटीरियर्स में चले जाओ, तो आप देखते हो कि घर, हाउसेस आर एब्सोल्युटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर, right? They are not very close to each other, so the population density there is comparatively lesser. तो population density cities में ज़्यादा होंगी और population density गांव में बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। सो हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे दिखता है आपको? दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत ऐसे, दिल्ली 6 अगर आपने पिक्चर देखी है तो घर कितने छोटे छोटे हैं वहाँ पे, और घर कितने पास पास है, देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। वैसे ही स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन बिहार एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन अरुणाचल प्रदेश। समझे बेटा? ये सब चीज़ें जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रख लो, इसके अलावा इसके बारे में याद रखने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट feature of population demographics is sex ratio. Okay, now here sex ratio basically talks about, it is the number of, definition देख लो, number of females per 1000 males, number of females per 1000 males। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर स्टेट बोलो या कोई एक रीजन बोलो कि वहाँ पे अगर 1000 मेल है तो उनके कंपैरिजन में फीमेल कितनी है, ठीक है। सो दैट इज सेक्स रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इज दैट राइट? सो ये तो अपन को पता है, ये फीमेल फीटिसाइड्स होती है ना, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये साइड में दे डोंट वांट गर्ल चाइल्ड, दे ओनली वांट बॉय चाइल्ड, है ना। उनको, उनके दिमाग में ये बकवास एक थॉट प्रोसेस है कि लड़के वंश बढ़ाएंगे और ऑल दैट स्टूपिड थिंग्स, राइट। सो सेक्स रेशियो ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अरे अर्मेनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा और लड़के कम है, तो दैट कंट्री हैज़ मेड अप certain rules, they want people from other countries to come। जैसे अर्मेनिया का तो अब आपने देखा था ये वॉर वगैरह चल रहा है, so that country has more number of females, मतलब एक लड़के के लिए वहाँ पे 5 फीमेल्स है। so here boys are at a very high demand, और इंडिया में that is not the condition, because इंडिया में लड़कियों को मार दिया जाता है, करेक्ट। रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दी फीमेल्स। बट आई वॉज सो इट वॉज सो प्लीजिंग टू हियर दिस कि अर्मेनिया में लोगों ने ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वहाँ पे जाकर आप वहाँ की लड़की से शादी करते हो तो आपको गवर्नमेंट, अर्मेनिया की गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है, रहने के लिए घर देती है, एंड यू बिकम द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, करेक्ट। सो ऐसे भी कंट्रीज है जो स्ट्रगल कर रहे हैं विद द लेस नंबर ऑफ मेल्स। इज दैट राइट? सो सेक्स रेशियो का डेफिनेशन आपको याद करना है। और इंडिया में अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूँ तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? हरियाणा। इसलिए तो ऐसे सीरियल्स बनती है, पिक्चर बनती है ना, कि लड़की हुई तो उसको मार डालो, है ना। और कंपैरेटिवली केरला में द सेक्स रेशियो इज़ कंपैरेटिवली हायर, बट इट इज़ नॉट बियॉन्ड 1000। ये कभी नहीं हुआ है कि इंडिया में फीमेल्स का नंबर कंपैरेटिवली मेल से ज़्यादा है। इज दैट वेरी क्लियर? सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो। एंड इसके अलावा जो लिटरेसी रेट है इसके बारे में मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ओके, वी हैव टू वाइंड अप टुडेज क्लास बिकॉज here we finish up our population first module of the chapter, that is population demographics. Is that right? So thank you so much for your time and patience. Take care of yourself and God bless you. Bye bye.